हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। इमरान हाशमी ने प्राइसी स्टार्स को चैलेंज करने के लिए किया प्राइस कट का ऐलान। उल्टा कैमरा हाथ में लेकर प्रियंका ने कैसे दिए मीडिया के सीधे सवालों के उल्टे जवाब। बताएंगे साजिद खान ने क्रिटिक्स के खिलाफ छेड़ दी है कौन सी नई जंग, और दिखाएंगे आपको सेव द गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव को सपोर्ट करने आगे आए कौन कौन से बी टाउन स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात बॉलीवुड के लेटेस्ट ए लिस्टर की। जी हां, बात हो रही है इमरान हाशमी की, जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म शंघाई के फर्स्ट लुक लॉन्च पर अपनी हाई फीस की खबरों पर कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर कई बड़े स्टार्स को मिर्ची लग जाएगी। टेक अ लुक। I can do one thing with my lips and my mouth. I can either chew pan or either kiss. There was one man who stole the show completely with his wit and humor and kept the media entertained throughout the Shanghai first look. Imran Hashmi proudly proclaims about his kissing skills. I can do one thing with my lips and my mouth. I can either chew pan or either kiss. If you say so. मगर एटलीस्ट इस प्रोमो में तो साफ दिखता है कि इमरान ने सिर्फ किसिंग नहीं बहुत कुछ किया है, और उनकी को स्टार कल्कि भी इमरान के स्लीजी कैरेक्टर से हुई बहुत ज्यादा इम्प्रेस। Just totally love this guy who was, yes, he's like this typical small town dirty sleazy guy, but at the same time, you know, he also has a journey in the film. Sorry, he's so fascinated by this girl who's come from Bahar, and you know that kind of white girl, you know how these small towns look at a white girl and everything. So he's kind of awed and stumped by her. So I think we really had a lot of fun playing with that chemistry. और ये कैरेक्टर हमारे सीरियल किस्से को कैसे मिला, इमरान से ही सुन लीजिए। Character who is kind of shady, who is in many ways repulsive in a certain sense, sleazy. He kind of carries around 3-4 visiting cards. He's a model coordinator. He's a small town journalist. He shoots porn films. Yeah, that had to come. That was expected from me. After started off with actually. I was like, Diwakar, wow, this is a really different character. And so he said, oh, he shoots porn films after. I was like, okay, that sounds familiar. और इमरान बताते हैं कि सीरियल किसिंग से लेकर porn films की ये जर्नी कैसी रही। Imran, you have progressed from serial kisser to you pop to a porn filmmaker. That's quite a progression. Yeah, that's a graduation actually. Would you elaborate a little more? He shoots porn films after 12 in the night. He used to kiss girls in the morning. Now he shoots porn films after 12 in the night. He's talking about Diwakar used to be when he was 16. और कौन सोच सकता था कि बॉलीवुड के ये दो एक्टर्स अब हैं और इमरान इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। I actually cut most of his role in this film. I did because Diwakar is that. I'm going to the editing room after this. Yeah. And I've been taking Krav Maga classes. What have you been learning? That's a secret. That's Diwakar, my secret. I have more lines than you in the film. Diwakar. हमको मेकअप वैन से जोर-जोर से चिल्लाने की और मारा-मारी डिस्ट्रीब्यूशन। That was us. And this is just an act they're putting up right now. Yeah, we actually hate each Come on other. downstairs. We hate each other. Parking Yeah, lot. exactly. Which is just a show. Well, hopefully आप दोनों की ये दोस्ती बनी रहे, मगर जब से इमरान ने अपने मूवीज के फीस इतने बढ़ा दिए हैं, very difficult to not feel insecure around him. देखिए, मैंने रेट बढ़ाया है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर आई फील कि मेरा रेट जो है इट शुड बर्डन अ फिल्म। एक विजन होता है, एक किस्म की फिल्म होती है, बट आई डोंट वांट इट टू बी डेट्रीमेंटल टू माय ओन करियर। तो कुछ एक्टर्स होते हैं who charge the moon and then eventually it burdens the film, but I'll never do that. किन एक्टर्स की तरफ इशारा है इमरान का, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े ए लिस्टर्स तीनों खान्स तो इमरान की इस लिस्ट में होंगे ही, जिनकी ह्यूज प्राइस कभी कभी बर्डन बन जाती है फिल्म्स पर, लेकिन लगता है इसमें अक्षय का नाम भी जरूर होगा।
जिनकी 14 क्रॉर्स में बनी फिल्म जंबो में से 11 क्रॉर्स का ह्यूज अमाउंट तो खुद अक्षय के अकाउंट में ही गया था। पर लगता है इमरान को अच्छी तरह से पता है कि ज्यादा प्राइस का अंजाम क्या होता है। It's a same price. It's not a crazy price. And thankfully मैं काम कर चुका हूँ एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, तो मुझे मालूम है एक्टर्स को क्या गालियाँ पड़ती हैं when they overprice themselves. So I know what that price should be, so that it keeps me in this industry for the long haul. We're sure you're here for a long haul with fantastic actors like Abhay, Kalki and Imran in the film. It'll be interesting to see who steals the show after the release. For this event, there's a clear winner for all. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्रियंका चोपड़ा किसी भी इवेंट पर आती है तो अपने साथ लाती है स्टाइल, मॉडेस्टी, थोड़ी डिप्लोमेसी और भी बहुत कुछ। लेकिन रिसेंटली जब एक कैमरा ब्रांड को प्रमोट करने आई प्रियंका तो लेकर आई उल्टा कैमरा। उसके बाद सब हुआ कैसे उल्टा पुल्टा, देखिए हमारी इस स्टोरी में। एक कैमरा ब्रांड को प्रमोट करने प्रियंका आई एक ग्रैंड इवेंट पर। हाथ में उसी ब्रांड का कैमरा लेकर मीडिया को पोज भी दिया। पर बहुत देर तक प्रियंका को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ है, और जब पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक मीडिया कैमरास प्रियंका को हाथ में उल्टे कैमरे के साथ कैप्चर कर चुके थे। बाद में अपनी गलती रियलाइज करने के बाद प्रियंका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। चलिए, ये तो प्रियंका के पोज करने की बात थी, जिसमें प्रियंका की इस मिस्टेक को मिस्टेक न मानते हुए बख्शा भी जा सकता है। पर इस इवेंट में प्रियंका का ये उल्टा पुल्टा खेल यही खत्म नहीं हुआ। अपना कैमरा तो प्रियंका ने सीधा कर लिया, पर दूसरे कैमरास को उन्होंने बिल्कुल नहीं दिए सीधे सीधे जवाब। By being extremely loud doesn't mean I'll answer your question, sir. ये नमूना तो जूम आपको पहले ही दिखा चुका है कि कैसे शाहरुख से नजदीकियों के सवाल पर मीडिया पर भड़क गई प्रियंका चोपड़ा। By being extremely loud doesn't mean I'll answer your question, sir. अब इस इवेंट पर प्रियंका के कुछ और जवाब आपको दिखा देते हैं जो सीधे साधे सवालों पर हमें मिले हैं। अब देखिए ना, प्रियंका से पूछा गया कि वो इस ब्रांड के कौन से मॉडल का कैमरा यूज कर रही हैं, तो वो जस्टिफाई करने लगी कुछ और ही बात। I like the fact that the camera has such pop colors कि अगर आप कुछ भी पहने, your camera will always stand out, and it's a style statement of sorts. I'm very fond of colors, as you can see. पर प्रियंका, आपका पर्पल कलर का कैमरा अपनी पिंक ड्रेस से तो कोई मेल नहीं खा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और सीधे सवाल पर दिखाते हैं आपको प्रियंका का एक उल्टा पुल्टा जवाब। कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको बोर करती है, और उस बोरियत से निपटने के लिए आप क्या करती हैं? You know, एक बहुत फनी चीज़ है, बोरियत मुझे होती नहीं। बोरियत मुझे तब होती है जब शूटिंग पे तैयार होकर बैठ के वेट करना पड़ता है ना, जब शॉट नहीं रेडी हुआ या कुछ सेटअप चल रहा है या वेट करना पड़ता है, लेकिन उसके दौरान भी कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। कोई स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है या कोई मीटिंग होती है, तो बोरियत एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रोफेशन ने मुझे बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं। बोर होके भी बोर ना होना, ये बहुत बड़ी एबिलिटी सिर्फ हमारी प्रियंका के पास है पूरी इंडस्ट्री में। और भी कई क्वालिटीज हैं, पर प्रियंका, आपकी सारी एबिलिटीज जानने के बाद तो हम यही कहेंगे कि हमें और आपके फैंस को पूरा भरोसा है कि आप हर उल्टी सिचुएशन को रियलाइज करने के बाद सीधी कर ही लेंगी। फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन रखिए कि कुछ उल्टा हो ही क्यों, है ना प्रियंका? फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। साजिद खान अब तक कई बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड दावे कर चुके हैं। हाउसफुल 2 की सक्सेस उनके क्लेम्स पर खरी भी उतर रही है। पर अब अपनी फिल्म में पापा से बैंड बजवाने के बाद साजिद ने बजानी शुरू कर दी है क्रिटिक्स की बैंड। टेक अ लुक। आज मैंने 3 बार 5 साल में लगातार क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा मारा है। 5 साल में 3 बार साजिद क्रिटिक्स के मुंह पर तमाचा मार चुके हैं। ये बात हम नहीं, खुद साजिद ही कह रहे हैं। और ऐसा कहकर साजिद ने छेड़ दी है क्रिटिक्स से जंग। क्रिटिक्स के प्रति मेरा ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि एक जमाने में मैं भी क्रिटिक था। मैंने भी दूसरों की फिल्मों की धज्जियां उड़ाई, मैंने भी दूसरों की फिल्मों की बैंड बजाई, लेकिन हमेशा सच बोला मैंने। और जिस फिल्म के बारे में बोलता था, मेरा 95% रिकॉर्ड था टेलीविजन पे। आप मेरा कोई भी शो उठा के देख लीजिए ऑन यूट्यूब, दे ऑल अवेलेबल। आई यूज्ड टू बी बैंग ऑन करेक्ट बिकॉज आई लव मूवीज। दीस क्रिटिक्स, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फिल्म्स। मेरे सामने कभी 50 को बिठाओ, मैं 50 को एक शॉट में उड़ा दूंगा।
50-50 क्रिटिक्स जब कोई रिव्यू लिखते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि ऐसा रिव्यू लिखो जिसे पढ़कर साजिद चिढ़ जाएंगे और फिर नजर आएगा साजिद का गुस्सा। पर साजिद ये तो बताइए कि 50-50 क्रिटिक्स को शूट करने का ये कॉन्फिडेंस आपके पास आया कहाँ से? कॉन्फिडेंस मुझे किस बात का है? कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ उस बात का नहीं है, कि मेरी बहुत ग्रेट बॉडी है उस बात का नहीं है, कि मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनता हूँ, मैं जूते पर चप्पल में घूम रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज़ के है कि मेरी माई लव फॉर हिंदी सिनेमा, उस बात पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस। और उस बात से मैं बोल सकता हूँ आपको कि हिंदी फिल्में बनती हैं ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। मैं 3 बार प्रूफ कर चुका हूँ, राजकुमार हिरानी साहब 3 बार प्रूफ कर चुके हैं। ओह, तो ये बात है। साजिद खुद को अब 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जैसा बड़ा डायरेक्टर मानने लगे हैं। पर साजिद, राजू हिरानी की फिल्म्स तो आपकी फिल्म से काफी अलग होती हैं। फिर कौन सी सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं आप? उनकी फिल्में ज्यादा सेंसिबल होती हैं, मेरी फिल्में थोड़ी सेंसलेस होती हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, आई एम प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। देयर इज नो अदर डायरेक्टर बिटवीन हिम एंड मी इन द लास्ट 20 years whose first, second and third films are super hits. चलिए, साजिद ने कम से कम ये तो माना कि वो 3 इडियट्स जैसी सेंसिबल फिल्म से ठीक उल्टी फिल्म बनाते हैं। पर लगता है सिर्फ राजू हिरानी से बॉक्स ऑफिस पर बराबरी करके साजिद का जी नहीं भरा, तभी तो अपनी 4th फिल्म के लिए उन्होंने कर दिया है और भी बड़ा दावा। इससे बड़ी हिट बनाऊंगा मेरी अगली फिल्म हिम्मत वाला। हिम्मत वाला? Yes, हिम्मत वाला with अजय देवगन। Okay, and who will play the Shriji's character? Within the next 3 weeks we are going to be launching somebody. एक वक्त था जब आप भी क्रिटिक थे, पर लगता है कि आपकी जिंदगी की रेस में आगे निकलकर अपना ही पास भूल गए हैं। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। मुंबई में सेव द गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने आए काजोल, सुष्मिता सेन के साथ कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स। पर इनमें से किस स्टार ने कैसे बटोरी सबसे ज्यादा लाइमलाइट, बताएगी हमारी ये स्टोरी। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आर कीन टू डू एन आइटम नंबर, तो वहीं काजोल कर रही हैं आइटम नंबर से किनारा। जी हां, एक रीसेंट इवेंट पर काजोल ने कहा that she is not interested in doing an item number. Hear it from the actress herself. I have this question popped to me 100 times to say that आप आइटम नंबर क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं करती? क्योंकि ऐसे नहीं नाच सकती मैं, इसलिए। Well, काजोल तो नहीं, बट उनकी डियरेस्ट सिस्टर रानी मुखर्जी बहुत जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म अय्या में दिखेंगी एक आइटम नंबर करते हुए। चलिए बात करते हैं इस इवेंट के बारे में, जहां हमने काजोल को स्पॉट किया। दरअसल कल मुंबई में रखा गया एक फैशन शो। वैसे आए दिन फैशन शोज होते रहते हैं, पर ये शो था काफी खास, as the cause was very special too, a cause to save the girl child in India. इस सोशल इवेंट के लिए आए कई B-Town celebrities and TV celebrities as well. We spotted Sushmita Sen, Kajol, Neha Dhupia, Mandira Bedi, Shriya Saran, politician and fashion designer Shaina NC. All these beautiful ladies came together in support to save the girl child. Sushmita was wearing a Manish Malhotra designed Indian lehenga, and we must say that she was looking very beautiful. Her elegant looks impressed us a lot. Sush chose to walk the ramp with her little beautiful angel. After the walk, the beauty with brains gave a good speech on Save the Girl Child cause. Let's hear what she has to say. Ladies and gentlemen, you're beautiful people and you've been a tremendous source of strength for me my entire life. Tonight, take that strength home, change one opinion, one life. I'll do that with Renee and Alisa. You do that with whoever you want. Well, Kajol यहाँ हमें दिखी minus hubby and kids, but she was looking gorgeous in that beautiful sari. Neha Dhupia was looking quite hot in her Indian attire. एक ही प्लेटफॉर्म पर आई ये सब हसीनाएं to support such a good cause. The evening came to an end with the fashion show. For Chetna Singh and Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे प्रियंका चोपड़ा से क्यों इनसिक्योर फील कर रही हैं अनुष्का। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के बीच चल रहे ब्रांड वॉर में नया अपडेट आया है। पता चला है कि अनुष्का प्रियंका से इनसिक्योर फील कर रही हैं। क्या है ये पूरा किस्सा, आपको बताते हैं। अनुष्का शर्मा अपसेट हैं। अनुष्का को हो रहा है मलाल।
अनुष्का को लगता है कि उनके रोल पर चल गई है कैंची। हम यहाँ अनुष्का की किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं उनके लेटेस्ट टेलीविजन कमर्शियल की। आपको तो याद ही होगी अनुष्का और प्रियंका के बीच छिड़ी ब्रांड वॉर की दास्तान, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब शुरू हो चुका है इस ब्रांड वॉर का राउंड 2। अनुष्का ने शूट किया है एक कैमरा ब्रांड के लिए। प्रियंका को एक दूसरे कैमरा ब्रांड को एंडोर्स करते देख राइवल ब्रांड ने अनुष्का को अपना फेस बनाया। प्रियंका का एड वाइडली अप्रिशिएट हुआ और यही देखते हुए अनुष्का भी अपने लिए कुछ इसी तरह का रोल चाहती थी। एड शूट हुआ और अनुष्का ने फाइनल कट देखकर ओके भी कर दिया, लेकिन जब लोगों ने इसे देखना शुरू किया तो अनुष्का को मिलने लगे फीडबैक और कहा गया कि अनुष्का मैम, आपका तो ये ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस है एंड नोवेयर इज दैट क्लोज टू दैट ऑफ प्रियंका। बस फिर क्या था, सुनने में आया कि अनुष्का इस बात से हैं काफी अपसेट। वेल, वी जस्ट वांट टू से अनुष्का, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, अगली बार देख के ओके कीजिएगा, फिलहाल तो जस्ट से चीज। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार पहुंचे एक इवेंट पर कुछ विलेजर किड्स को चीयर करने। तो अकी ने आखिर कैसे किया इन बच्चों को एंटरटेन, आपको दिखाते हैं। अक्षय कुमार ने अपने बिजी स्केड्यूल से निकाला टाइम और पहुंच गए विलेज के बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने। वहां पहुंचकर अक्षय इवेंट में तो बैठे ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने वहां की विलेज के बच्चों के साथ की इंटरैक्शन। यहाँ आए अक्षय ने मीडिया से बात तो नहीं की, पर हमने कैप्चर कर लिया वो मोमेंट जहां अक्षय बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। आप भी सुनिए कि अक्षय और बच्चों के बीच क्या क्या बात हुई। हमको हाउसफुल भूल जाओ, अभी आप बताओ और क्या पूछना चाहते हैं। अक्षय को हाउसफुल 2 के बारे में बात नहीं करनी थी, पर एक बच्ची के बोलने पर उन्होंने एक डायलॉग जरूर बोला। क्या आप हमें इतनी सारी आपने फिल्म्स की है, तो कोई भी एक उसका डायलॉग लीजिए। इसका डायलॉग बोल दीजिए। इस्मार खान का प्लीज डायलॉग बोलोगे जब वो कैटरीना का और आपका झगड़ा होता है, तो आप दरवाजे के बाहर से बोलते हो बच्चे की जान दे। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्षय ने तो बच्चों को हेल्दी और फिट रहने के टिप्स भी दे डाले जब उनसे पूछा गया ये सवाल। आप इतने अच्छे स्टंट कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेता हूँ मैं अच्छा खाना खाता हूँ, हाँ, फल फ्रूट खाता हूँ और वेजिटेरियन खाता हूँ और अपना ध्यान रखता हूँ। रोज़ सुबह उठ के कसरत करता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ और उसकी वजह से मैं काफ़ी स्टंट्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी जल्दी तो सो सकते हैं कि जल्दी उठ जाए, थोड़ा खाएं पिए और कसरत ज़रूर करें। जाते जाते अक्षय से एक बच्ची ने ये भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग यहाँ आकर जरूर करें, और अक्षय ने भी उसकी बात मान ली। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या SS बालग्राम में आप आके फिल्म की एक शूटिंग कीजिए। पक्की बात है। ठीक है, फिर आप आएंगे हम मिलने। हाँ, मैं प्रॉमिस करो आप आओगे। पक्की बात है, होगी बात। जरूर पक्की बात। और एक बार SS विलेज भी विजिट करें। किधर? एक काम करो, अपनी लिस्ट दे दो कहाँ शूटिंग करनी है। ये मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इनको बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो कुछ इस तरह अक्षय ने इवेंट अटेंड करने के साथ बच्चों के साथ भी किया स्पेंड क्वालिटी टाइम। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। रिसेंटली गोवा में हुआ टॉमी हिलफिगर का स्टोर लॉन्च। इस स्टोर को लॉन्च करने आए प्रतीक ने ज़ूम से की एक्सक्लूसिव बात, जहां पर उन्होंने बताया हमें अबाउट हिज रिलेशनशिप स्टेटस। वेल, प्रतीक सिंगल है या मैरिड, ये खुद बताएंगे आपको प्रतीक। Pratik, welcome on Zoom. Thank you once again. Okay, this question is for all your female fans out there, because they have been writing to me non-stop. There's been rumor doing rounds that you're secretly married to Amy Jackson. Hi, man. No, we that is just a rumor, like you said. No, marriage is a long way. But no, we are
committed and in a serious relationship, and really supportive of each other and best friends, and not married. Still single. Not married. But not single. Not married, but not single. Okay, so 50-50 relief for female fans out there. Hanji, bilkul, I guess. Thank you, Pratik. Thank you for so much. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.